Hello everyone. Hope you all are fine and doing your studies through video lectures. This is your maths class and today here we are going to start our new chapter and that is chapter number 4. And its name is, do you have any idea what is its name? Okay. So before telling you about name of this chapter, let's have a quick activity, and after doing that activity simply you will get the idea of name of your chapter. So students, here some questions are on your screen. I'm giving you few seconds, just solve and then I'll tell you the answers. You can see this screen. Yes, which is longer, which is shorter, which is longer, which is shorter, which is shorter, which is longer. 6 images are here, different types of images, and now here they have asked which is longer and which is shorter. This is very easy activity and I hope that you all can do this easily. So now I hope that you all come to know the answers. This is very easy. Let's have a look. It has asked which is longer, first one, this is longer. Which is shorter, this is shorter. Which is longer, this one is longer. Which is shorter, this one is shorter. Which is shorter, this one is shorter. And which is longer, this one is longer. So I hope that you all have got these answers only. You have solved this and you all are getting the same answers. Okay. So now I hope that you all come to know that our chapter's name is, which activity have done here right now? Longer and shorter. It means that today we are going to discuss our chapter 4 and its name is long and short. Name of our chapter is long and short. So students, open page number 46 of your maths book. Let's see what is given here. Same page number 46 is on your screen also. Here you can see chapter 4 long and short. Let's have a reading. What is given here? Lali is selling things at her father's shop. A farmer comes to buy rope. लाली ने क्या किया? लाली अपने फादर की शॉप में क्या कर रही थी? सामान बेच रही थी. सेलिंग थिंग्स माने सामान बेचना. तो लाली क्या कर रही थी? अपने फादर की शॉप में सामान बेच रही थी. अ फार्मर कम्स टू बाय रोप. अब वहाँ पे एक फार्मर आया और उस फार्मर ने क्या करना था? वो फार्मर क्या, रोप मीन्स रस्सी. वो फार्मर एक रस्सी खरीदने आया. Okay, now let's see what is the conversation that is going between Lali and farmer. This is farmer. Farmer is saying to Lali, can you give me 7 arms of rope? फार्मर क्या कह रहा है लाली से कि क्या आप मुझे 7 arms of rope दे सकती हो? Now see what you can see here. Lali has started her work. अब लाली ने अपना काम शुरू कर दिया. Okay, now here one question arises that what do you mean by 7 arms of rope? Now here arms of rope means, arms means जो बेटा आपके हाथ होते हैं ना, that are called arms. अब वो arms से क्या कह रहा है कि आप 7 arms of rope दे सकते हो. 7 arms of rope means कि आप अपने arm से नाप करके 7 बार रस्सी को अपने arm से नाप करके क्या मुझे दे सकती हो? Now see what Lali is saying here. Lali has started her work. You can see she is measuring this rope with her arm. देखो ये नाप रही है ना. ठीक है, अब देखो लाली क्या कह रही है फार्मर से? हियर इज योर 7 आर्म्स ऑफ रोप. क्या कह रही है लाली फार्मर से? हियर इज योर 7 आर्म्स ऑफ रोप. एंड नाउ यू कैन सी that Lali has
टेकन दिस रोप फ्रॉम दिस बंडल, ये पूरा एक बड़ा सी जो पूरी रस्सी रखी हुई थी एक साथ, उसमें से थोड़ी सी रस्सी जो कि उसने 7 आर्म्स मेज़र करके निकाली है, जो रोप उसने 7 आर्म्स मेज़र करके निकाली है वो अलग कर ली। और लाली अब क्या बता रही है फार्मर को कि हेयर इज़ योर 7 आर्म्स ऑफ रोप। नाउ सी वेन सेम थिंग इज मेजर्ड बाय फार्मर, अब लाली ने तो अपने अकॉर्डिंग क्या किया, 7 आर्म्स नाप के दे दिए, बट जब सेम चीज़ फार्मर ने मेज़र करना शुरू किया तो देखो फार्मर क्या कह रहा है, बट दिस इज़ ओनली 6 आर्म्स लॉन्ग। लेकिन फार्मर क्या कह रहा है कि जो रोप आपने मुझे दी है लाली, ये क्या है, सिर्फ 6 आर्म्स लॉन्ग है, ये तो 7 आर्म्स है ही नहीं। नाउ हियर क्वेश्चन अराइजेज, अच्छा ओके, फर्स्ट सी हियर, now what Lali is saying, why don't you measure your arm with this rope and take 7 times of that length। अब देखो, अब लाली थोड़ा सा, आपको देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी परेशान सी लग रही है। अब लाली क्या कह रही है फार्मर से, लाली कह रही है फार्मर से कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप खुद से 7 आर्म्स अपने रोप को ले लीजिए, 7 आर्म्स खुद से मेज़र करके ले लीजिए, खुद से मेज़र, एंड देन यू कैन सी हियर कि क्या कर रहा है ये जो फार्मर है, अब ये खुद से रोप से अपने आर्म से 7 आर्म्स मेज़र कर रहा है। चलिए हियर यू कैन सी, ये देखिए अब ये अपने आर्म से मेज़र करके 7 आर्म्स रोप ले रहा है, ले जा रहा है। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी। नाउ बेटा, first of all, one question arises here that when Lali has measured, देखो लाली ने भी तो 7 आर्म्स ही मेज़र किया था, बट when, अब देखें हुआ क्या कि लाली ने भी मेज़र किया एंड फार्मर ने भी मेज़र किया, बट नाउ can you tell me why there is a difference in the measurement of Lali and measurement of farmer? Because see बेटा, लाली is a small girl, स्मॉल गर्ल है तो उसके आर्म्स भी तो स्मॉल होंगे। एज यू कैन सी आर्म्स, योर आर्म्स एंड योर मदर आर्म्स, अगर आप देखेंगे अपने आर्म्स और अपने मदर के आर्म्स को तो ऑब्वियसली योर आर्म्स आर स्मॉलर एज कंपेयर टू योर मदर आर्म्स। तो सिमिलरली क्या हुआ कि जब लाली ने मेज़र किया उस रोप को अपने आर्म से तो उसने तो 7 आर्म्स ही मेज़र किया, बट जब वो सेम चीज़ वो वाली रोप जब फार्मर ने मेज़र करी तो उसके आर्म्स तो बड़े थे, तो उसके लॉन्ग आर्म्स की वजह से वो रोप जो लाली के लिए 7 आर्म्स हो रही थी वो फार्मर के लिए सिर्फ कितनी हो रही थी, 6 आर्म्स हो रही थी। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुई कि जो फार्मर को 7 आर्म्स रोप चाहिए थी वो सिर्फ 6 आर्म्स हुई। अब उसका सॉल्यूशन लाली ने क्या निकाला, लाली ने फार्मर को ये बोला कि आप खुद से ही मेज़र कर लीजिए, अपने आर्म्स के अकॉर्डिंग मेज़र कर लीजिए और ये रोप आप ले जाइए। नाउ सी व्हाट इज गिवन हियर, सो द फार्मर मेजर्स हिज आर्म विद द रोप एंड लाली gives him 7 times that much rope. Measure your arm and your mother arms. What is the difference? This you can see very easily. Okay. Now see, I hope you are able to understand this story between Lali and the farmer. Now turn your page and come in page number 47. See what is written here, how many. Okay, before discussing this, I just want to ask, आप साथ में हम इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर रहे हैं अभी, बट यू हैव टू थिंक, अपने माइंड में बेटा ये सोचो धीरे धीरे कि ऐसा क्यों हुआ कि सेम रोप जो लाली ने मेज़र करी वो 6 आर्म की थी और जो फार्मर ने मेज़र करी, सॉरी जो लाली ने मेज़र करी वो 7 आर्म्स थी, बट जो फार्मर ने मेज़र करी वो 6 आर्म्स ही हो गई। अब देखो रीज़न तो हमें पता चल गया, दैट बिकॉज लालीज आर्म्स आर शॉर्ट एज कम्पेयर टू फार्मर्स आर्म, इसलिए उसका मेजरमेंट कम आया, दैट इज़ ओके। बट नाउ जस्ट एज आई एम ट्राइंग टू टेल यू द आंसर्स ऑफ दिस पेज नंबर 47, at that time you just try to think that how we can solve this problem,
हमें ये प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करनी होगी ना। ऐसे थोड़ी होगा आप कहीं सामान लेने जाओगे, अगर कोई छोटा बच्चा आपको सामान देगा और खुद से मेज़र करके देगा, अपने बॉडी के ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग मेज़र करके देगा, हैंड से मेज़र करेगा या अपनी हाइट से मेज़र करेगा, तो उसमें क्या होगा, बॉडी पार्ट से जब मेज़र करेगा तो ऑब्वियसली अगर वो छोटा है तो आपको कम सामान मिलेगा। और ऐसे ही कोई अगर आपको जो बड़ा पर्सन होगा, अगर वो आपको मेज़र करके देगा तो फिर वो बड़ा सामान देगा। अब बड़े पर्सन्स में भी हाइट वेरी करेगी, कोई हाइट का छोटा होता है, कोई हाइट का बड़ा होता है, तो फिर उस अकॉर्डिंग इसका मतलब अगर हम किसी टॉल पर्सन की शॉप में जाएंगे तो हमें ज़्यादा सामान मिलेगा, अगर हम किसी शॉर्ट पर्सन की शॉप में जाएंगे तो हमें कम सामान मिलेगा। और फिर ऐसे तो कोई शॉर्ट पर्सन्स की शॉप में जाएगा ही नहीं। सो एज आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस, यू जस्ट थिंक कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन हियर, हाउ मैनी, व्हाट इज रिटन हियर, इन हाउ मैनी स्टेप्स विल डोरजी क्रॉस द रोड। अभी जो डोरजी हैं ये कितने स्टेप्स में रोड क्रॉस करेंगे। अब देखिए सबके आंसर्स इसमें वेरी कर सकते हैं। सो आई कैन, आप क्या करो, जितना इसका स्टेप है इतने ऐसे मेज़र करके, 1 स्टेप में यहाँ आ रहा है, 2nd स्टेप में यहाँ आएगा, 3rd स्टेप में फिर थोड़ा आगे, 4 में फिर थोड़ा आगे, 5 में फिर थोड़ा आगे। सो इन दिस वे यू कैन सिंपली राइट। आपको क्या लगता है कि कितने स्टेप्स में डोरजी यहाँ से इस यहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, फ्रॉम दिस प्लेस टिल दिस प्लेस, ये आपको बताना है। नाउ सी another question, how many cups can be placed in a line on this table? Now see, here 3 cups are already placed. अब जो स्पेस बची है हम इसमें कितने कप्स रख सकते हैं, this you have to decide. Now beta, from here again when question rises that as 3 are here, 3 more you can put, तो कितनी जगह कवर हो जाएगी, फिर आप 6 हो जाएंगे, 6 के बाद फिर आप कितने और रख सकते हैं, कितनी जगह कवर हो जाएगी, ये आपको खुद से सोचना है। आई विल प्रोवाइड यू द आंसर्स रिलेटेड टू दिस, नो नीड टू वरी, बट when you think by yourself then your answers may vary. आप सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। अब आप सबके आंसर्स अलग अलग क्यों होंगे, ये भी सोचने का कारण है। तो बेटा आपके आंसर्स इसलिए वेरी करेंगे बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर मेज़रमेंट डिवाइस हियर। हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेज़रमेंट डिवाइस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक आइडिया के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं अभी। ओके, तो हो सकता है किसी को लगे कि डोरजी हमारे 6 स्टेप्स में वहाँ पहुँचेंगे, रोड क्रॉस कर पाएंगे, किसी को लगेगा 8 स्टेप्स में, तो किसी को ये भी लग सकता है कि 4 स्टेप्स में ही क्रॉस कर लेंगे। तो ये क्या है, दिस इज़ योर आइडिया। एंड वाई वी आर यूजिंग अवर आइडिया हियर, बिकॉज राइट नाउ वी डोंट हैव एनी मेजरमेंट डिवाइस, एनी मेजरिंग डिवाइस थ्रू विच वी कैन चेक द पर्टिकुलर मेजरमेंट. Now see how many pots can be placed to reach the tree branch. अब ये ट्री ब्रांच में पहुंचने तक के लिए आपको कितने पॉट्स रखने पड़ेंगे, 2 पॉट्स तो रखे हुए हैं। ऐसे ही 2 और रखेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, फिर 2 और रखेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, फिर 2 और रखेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। क्या हम ब्रांच तक पहुंच पाएंगे, दिस यू हैव टू थिंक, आप अपने हिसाब से इसे करेंगे। ठीक है, देन अगेन हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी हैंग ऑन दिस वायर, हम इस वायर में कितने शर्ट्स और टांग सकते हैं, दिस वायर। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं बेटा, इन दीज क्वेश्चंस ओनली यू कैन पुट योर आइडिया हियर, नोबडी कैन टेल एनी एग्जैक्ट आंसर। ये जो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं इनमें हम सिर्फ एक आइडिया दे सकते हैं, हमारे पास कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि किसी का भी आइडिया या किसी के भी मेजरिंग स्टाइल्स अलग अलग हो सकते हैं, तो उस हिसाब से उनका जो हाउ मेनी का आंसर्स आएगा वो भी वेरी करेगा। ओके, सी दिस आई हैव डिस्कस्ड यू, आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर्स ऑफ दीज ऑल क्वेश्चंस हियर so that you should not face any problem, but you should try this by yourself also. ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आंसर्स आपको बता रही हूँ आप सेम आंसर्स इसमें लिखें, इसके लिए आप खुद से अपने आइडिया के अकॉर्डिंग आंसर्स लिखिएगा। बट
as you should not feel any problem, so that's why I am providing you answers also. Okay, see, that is the answer of page number 46, question number 1. Measure your arm and your mother's arm. What is the difference that you know? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि mother's arm is bigger than that of mine. Simple, you can write this. Question number 2. How many steps will Dorji cross the road? अब देखो इसमें जो हमने आंसर लिखा है, क्या लिखा है? Dorji may क्रॉस द रोड इन 5 स्टेप्स. अब देखो बेटा, इस आंसर में जो मैंने लैंग्वेज यूज़ करी है वो क्या है? डोरजी मे क्रॉस द रोड. मे क्रॉस द रोड मतलब वो कर सकते हैं 5 स्टेप्स में. कर सकते हैं मतलब आई एम नॉट हैविंग एनी एग्जैक्ट आइडिया. मेरे पास आई एम नॉट हैविंग एनी एग्जैक्ट डेटा. आइडिया तो है, आइडिया तो मैंने 5 स्टेप्स कह दिए, लेकिन मेरे पास कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है उस चीज़ का. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग मे हियर. डोरजी मे क्रॉस द रोड इन 5 स्टेप. वो 5 स्टेप्स में कर सकते हैं या वो शायद 5 स्टेप्स में कर लेंगे. इस तरीके से हमने आंसर किया है. ओके, नाउ सी आंसर नंबर 3. What is here? See question. How many cups can be placed in a line on the table? I told you 3 रखे हुए हैं. अगर हम 3 और रखेंगे तो 6 हो जाएगा. फिर पर्टिकुलर कुछ स्पेस बढ़ेगी. अब उस स्पेस में किसी को लगेगा हम 2 और रख लेंगे, तो जिसको 2 लगेगा उसके लिए आंसर 8 हो जाएगा. जिसको 4 लगेगा कि हम और रख सकते हैं उसके लिए आंसर 10 हो जाएगा. सो व्हाट आई हैव गिवन यू हियर, 10 cups can be placed in a line on this table. इस टेबल में हम 10 cups रख सकते हैं. In this way you can answer these questions, and this is, I am telling you, this is my idea. You should solve this by your idea. Okay, now look here in question number 4. How many pots can be placed to reach the tree branch? अब ट्री के जो ब्रांच है वहाँ तक पहुँचने के लिए हम कितने पॉट्स रख सकते हैं? 2 ऑलरेडी रखे हैं. 5 pots can be placed to reach the tree branch. This is my idea. You should write your idea. Okay, and how many sheets can be hang on this wire? 4 sheets can be hang on this wire. This is my idea. Same thing again you can put according to your idea. You can write answer according to your idea. So students, here I have given you answers. I have told you that how you have to give answers of this page number 47. You can see, you can take some information that how I have done, but if you will do by yourself then it will look very nice. Okay, now before going to discuss topics given in another page, here I am going to introduce with some concepts. Okay, see beta, what is on your screen? Yes, this is scale. This is scale, wooden scale, or you can say ruler. Okay, this is scale or wooden scale or ruler. This is type of scale you have seen in your daily life. आपने देखा तो है ही scale. ऐसा तो नहीं है कि scale आपने पहली बार देख रहे हैं, because we use scale for putting straight lines, for making straight line, right? You all know, you all have seen. But today here I am going to tell you that how we can use this scale for measurement, or how this scale can help us in measuring the things. Okay, so before that you can see here that this is the scale and it is starting from 0 and ending at 25, right? ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है? 25 में. दिस इज लॉन्ग स्केल. अभी आपने देखा होगा द शॉर्ट स्केल दैट यू पीपल आर यूजिंग, इट मे हैव नंबर्स till 12 or till 10 only. Okay, so today here I am going to tell you many things related to scale.
here you can see, okay, wait. Now see, here you can see one scale is in front of you. Okay, what is written here? सेंटीमीटर. क्या लिखा है देखिए, सेंटीमीटर. एंड ये सेंटीमीटर इट मीन्स जो ये 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस है, इसे हम किस में मेज़र कर रहे हैं? इस डिस्टेंस को हम मेज़र कर रहे हैं सेंटीमीटर्स में, राइट. नाउ यू कैन सी, जो आपकी स्केल है, इफ़ यू कैन पुट योर स्केल इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू कैन चेक राइट नाउ कि जो आपकी स्केल होगी बेटा, उसमें इसी तरीके से मार्क्स बने होंगे, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5, राइट. और हर नंबर के बीच में, लाइक 0 और 1 है ना, जस्ट हैव अ लुक हियर. सी, ये 0 है, ये 1 है ना, इसके बीच में यू कैन सी देयर आर मेनी लाइन्स, बहुत सारी लाइन्स हैं यहाँ पे, राइट. सिमिलरली यू कैन सी एनी नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स, 3 और 4 देख लीजिए, 3 और 4 के बीच में यू कैन सी मेनी लाइन्स आर देयर. एंड इफ़ यू विल फोकस इट, तो यू विल ऑल्सो फाइंड दैट ये जो नंबर्स हैं, इनके बीच में जो लाइन्स डाली हैं, उन लाइन्स में भी एक हमारी ग्रेटर लाइन भी होती है, विच इज़ smaller in size as compared to main line of 5 and 6, but it is greater than the other lines between this line. Okay, अभी थोड़ा और समझेंगे. देखिए, whenever I am telling you some new concept, then no need to worry about that, because you know this. I am not going to show you only a single image. मैं आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिखाती हूँ और बहुत सारे पिक्चर्स से आपके वो चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ. ओके, सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन नो नीड टू वरी, जस्ट हैव पेशेंस एंड लुक हियर. नाउ सी, दिस इज़ द सेम एज योर स्केल इज. जैसे आपका स्केल होता है, बिल्कुल सेम चीज़ है ना. देखिए, इसमें क्या है, 0 से लेके 1 तक. क्या है? 0 से लेके 1 तक डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं. ओके, एज यू कैन सी हियर, इसमें क्या है बेटा, 0 से लेके 10 तक हमारे सारे नंबर्स दिए गए हैं, राइट. एंड अगर अब आप फोकस करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट कि ये देखिए 0 से लेके 1 तक डिफरेंट नंबर्स लिखे गए हैं, जैसे आपकी स्केल में होते हैं, बिल्कुल. और अगर आप फोकस करेंगे तो ये जो सेंटर में लाइन है, ये क्या है, ये थोड़ी सी हमारी ग्रेटर है बिटवीन एज कंपेयर टू जो छोटी छोटी लाइंस डाली गई. जो छोटी छोटी लाइंस बीच में है ना हर नंबर के, उनमें से एक थोड़ी सी और लॉन्ग लाइन आती है. ओके, अब देखते हैं ये क्या है. देखिए बेटा, ये 0 और 1 के बीच में क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट 5. ये जो लाइन होती है किसको रिप्रेजेंट करती है? ये लाइन रिप्रेजेंट करती है हमारी 5 को. किसको? 5 को. अगेन यू कैन सी 1 और 2 के बीच में ये लाइन है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? 5 को. 5 मीन्स 1.5, 2.5. ये वाले 5 को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये मेन 5 को रिप्रेजेंट नहीं करती. ये किसको रिप्रेजेंट करती है? किसी दो नंबर्स के बीच के 5 को. मीन्स आप अगर यहाँ पे अच्छे से फोकस करें, देखेंगे ये 0 है, ये 1 है. इन दो नंबर्स के बीच में 0 और 1 से आप क्या देख सकते हैं? डिफरेंट नंबर ऑफ लाइन्स हैं. अब लेट्स काउंट हाउ मेनी लाइन्स आर देयर आफ्टर 0. 1 2 3 4. देखो सेंटर में जहाँ हाफ लिखा है वहाँ क्या आ गया? 5, देन 6 7 8 9 एंड 10. ओके, फिर से इधर साइड से काउंट कर लेते हैं. ये 3 और 4 के लिए काउंट कर लेते हैं. 3 के बाद और 4 से पहले जो हमें लाइन्स दिए उन्हें काउंट करते हैं. लेट्स सी व्हाट इज देयर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, अब देखो बेटा, वट यू विल फाइंड, एंड 10 इज इन 4. अब देखो, अगर आपने देखा तो 3 से 4 के बीच में हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स होती हैं. अगर आप 3 के बाद काउंट करोगे तो 4 में वो 10 हो जाती हैं. तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो ये पता चली कि 0 से 1 के बीच में जो ये लाइन्स होती हैं, टोटल कितनी लाइन्स होती हैं?
अगर 0 और 1 को छोड़ देंगे, किसी भी 2 नंबर्स को छोड़ देंगे, तो बीच में जो लाइंस होती हैं वो 9 लाइंस होती हैं। 9 लाइंस होती हैं। अब कैसे होती है 9? देखो, सी हियर बिटवीन 2 and 3, ये 2 के बाद 4 लाइंस, और ये इस जो ग्रेटर लाइन है ये मैंने आपको बता दिया हमेशा ये 5 रिप्रेजेंट करेगी। 5 मतलब हाफ। और ये 5 के बाद यहाँ 4 लाइंस, 4 4 कितना हो गया 8, और अगर ये आप 5 वाली काउंट करेंगे कितना हो जाएगा 9। तो बेटा ये जो 2 और 3 के बीच में ये क्या है, ये 9 लाइंस हैं। और अगर आप 2 के बाद काउंट करोगे और पूरा 3 तक काउंट करोगे तो ये 10 लाइंस होती हैं। क्या है, ये स्मॉल लाइंस हैं, जिनको हम कैसे बताते हैं कि जैसे 0 के बाद 0 का पार्ट है ये, जैसे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अगर हम 0 से अगर हम कोई लाइन खींचते हैं बेटा 0 के बाद यहाँ तक आती है, तो इट मीन्स वो 1 में नहीं हुई, वो लाइन क्या हो गई हमारी 0.3। क्या हो गई 0.3। उस लाइन को हम कहेंगे 0.3। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा यू हैव टू ड्रॉ वन लाइन ऑफ 6.5, ठीक है? तो हम स्टार्ट हमेशा कहाँ से करेंगे, 0 से। 6 हमारा कहाँ है, ये, और ये 5 6.5, 6 के बाद 6 का 5th पार्ट। अब 6 का 5th पार्ट कौन सा है, 6 के बाद अगर आप काउंट करेंगे तो जो ये लॉन्ग लाइन है ये 6 का क्या है 5th पार्ट। तो यहाँ पे जो है हमारा 6.5 हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करा तो ये 6 हो गया, ये तो अभी 6 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन 6 के बाद 5 में काउंट करूँगी, 1 2 3 4 और 5। जब वो 5th वाले प्लेस में आ जाएगा तो जो मेरी लाइन होगी वो कितनी बन जाएगी, 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर मीन्स what I have explained you here कि जो हम स्केल में मेजरमेंट बेटा स्केल जो आप लोगों ने आज तक तो सिर्फ लाइन डालने के लिए यूज़ किया है उसका, राइट? स्ट्रेट लाइन डालने के लिए, कोई चीज़ ड्रॉ करने के लिए। बट डू यू नो दैट वी यूज़ स्केल फॉर मेजरमेंट्स। हम स्केल को मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब वो मेजरमेंट करते कैसे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, जो आपके स्केल में टॉप साइड में ये लिखा होता है ना, इस तरीके से ये वाला पार्ट जो दिस पार्ट रिप्रेजेंट सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट हमें क्या चीज़ दिखाता है, सेंटीमीटर दिखाता है। सी अगेन नाउ, तो जो ये 0 से लेके 10 तक जो पोर्शन हमारा है ये कौन सा पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जो हमें क्या दिखाता है, सेंटीमीटर दिखा रहा है। दिस इज शोइंग अस सेंटीमीटर। एंड सेंटीमीटर में क्या है मैंने आपको बता दिया। अब इस पार्ट्स में देखो, मेन ये वाली जो लाइन है दिस पार्ट, ये आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको दिखा रहा है 0, और 0 के बाद सीधे उसका 5th पार्ट 0.5 देन 1। ठीक है, ये 0.5 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 के बाद ये वाली लाइन क्या हो गई 1.5 देन 2, फिर 2 के बाद 2.5 देन 3, फिर 3 के बाद 3.5 देन 4, 4.5 देन 5, 5.5 देन 6। अच्छा, अब अगर आपको ये 0.5 इसमें ढूंढना हो तो कैसे करेंगे, देखिए ये ब्रॉडनेस में इसने यहाँ इसे अच्छे से क्लियर व्यू इसने यहाँ दिया है। अब अगर आप देखेंगे तो 0, अगर मैं आपको बोलूँ कि 0.4 कहाँ पे होगा, इट मीन्स यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और ये 5 से थोड़ा सा पहले रुक जाएंगे, तो दिस इज 0.4। 0 के बाद 0 का 4th पार्ट ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपको बोल दूँ 1.8, 1.8 क्या होगा, 1 के बाद आपने 8 तक काउंट करना है। एंड यू नो ये सेंटर वाला तो 5 हो गया, सेंटर वाला 5, 5 के बाद 6 7 8 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 1.8 ड्रॉ करना है, तो आप स्टार्ट तो बेटा 0 से ही करोगे, हमेशा मेजरमेंट स्टार्ट तो 0 से ही होगी, और 0 से चलते हुए इट विल स्टॉप हियर। ये क्या हो गया 1.8, क्या हो गया 1.8। सो आई होप नाउ आपको समझ में आ गया कि ये जो हमारे सेंटर में किसी 2 नंबर्स के बीच में जो सेंटीमीटर्स में होता है, इसे हम कैसे काउंट करते हैं, हम कैसे स्केल को यूज़ करेंगे यहाँ पे मेजरमेंट के लिए। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 48 ऑफ योर बुक। Open page number 48 of your book and see what is given here.
हाउ मच इज़ अ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कितना है, हाउ मच इज़ अ सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर से सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि सेंटीमीटर क्या है। सेंटीमीटर क्या है, आई टोल्ड यू ना, जो हम स्केल में ऊपर वाला लाइन जो हमारी स्केल में होती है, जिसमें कि हमारे नंबर्स लिखे होते हैं और उनके बीच में 10 का गैप, 9 या 10 का गैप ले लीजिए, टोटल में जो गैप होता है वो क्या दिखाता है, स्केल हमें सेंटीमीटर दिखाता है। अभी देखिए, अब आप देख सकते हैं क्रोकोडाइल इज हियर एंड व्हेन मैच स्टिक इज हियर एंड इट इज आस्किंग हाउ मच इज अ सेंटीमीटर। अभी आपको कैसे पता चलेगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं लिखा हुआ। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि लेट्स मेक दिस स्केल। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस स्केल को बना लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी, जहाँ पे ये रेड से स्टार्ट, देखो एक बात तो ये हो गई, मैंने आई टोल्ड यू ना कि हम स्केल 0 से ही स्टार्ट करेंगे। 0 के बाद लेट्स पुट द नंबर 1, देन 2, देन 3, देन 4. Wait, huh, beta, it is not working properly. I'll start again. Now see beta, here I have written the numbers. Okay, जो स्केल मेजरमेंट दिया था उसमें मैंने नंबर्स लिख लिए। सेम यू कैन ट्राई इन योर बुक ऑल्सो। ओके, सो हियर यू कैन सी आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड आई एम एंडिंग एट 13 पे ख़त्म हो रहा है। बेटा मैंने यहाँ पे ना डिजिट्स ऊपर और नीचे लिखे, जैसे 1 के लिए यहाँ, 2 के लिए ये ऊपर लिख दिया, 3 के लिए इधर, 4 के लिए इधर ऊपर लिख दिया, 5 के लिए नीचे, 6 के लिए ऊपर, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर स्पेस टू राइट द नंबर्स, दैट्स वाई। ओके, 7 के लिए नीचे, 8 के लिए ऊपर, 9 के लिए नीचे, 10 के लिए ऊपर, 11 के लिए नीचे, 12 के लिए ऊपर, एंड देन दिस इज 13. So you can see, you can try this by yourself also in your book. Here as we have made this scale, so what we are getting, how much is a centimeter. Now it is become very easy for us. You can see ये जो हमारा क्रोकोडाइल है, इसका जो ये टॉप जो माउथ का पोर्शन है वो कहाँ पे है, 0 पे, और जो इसकी टेल का एंडिंग पोर्शन है वो कहाँ पे है, 13 में. सो व्हाट वी कैन टेल, what is the centimeter of this crocodile, it is of 13 सेंटीमीटर. हम बड़ी इजीली से कह सकते हैं ना, ये कितने का है, 13 सेंटीमीटर का. ओके, सेम चीज यू कैन, द सेम थिंग यू कैन अप्लाई फॉर दिस ऑल्सो. ओके, इसके लिए आप अप्लाई करेंगे, दिस इज योर होमवर्क, दिस आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू. ओके, दिस इज योर होमवर्क. वाई आई एम गिविंग यू दिस होमवर्क, बिकॉज नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. आपको क्या करना है, आप पहले ये जो हमारा दिया है ये स्केल, इसमें नंबर्स पुट करेंगे. आफ्टर पुटिंग नंबर्स यू कैन सी दैट वेरी इजीली. अब देखो, जिसको आप 0 से काउंट करेंगे और यहाँ पे एंड होगा, तो इसका जितना भी सेंटीमीटर आएगा आप उतना लिखेंगे. अब देखिए, अगर आप इस डाइस को देखेंगे तो ये जो डाइस का है ये सिर्फ 2 नंबर्स के बीच में है, तो वो 2 नंबर्स के बीच में है, तो वो 2 नंबर्स सेंटीमीटर में नहीं आएंगे, वो क्या होगा, दैट इज़ ओनली 1 सेंटीमीटर. एज आई टोल्ड यू देयर, अगर मैंने बताया था ना, मैंने आपको एक स्केल है, और अगर ये हमारे इस तरीके से कोई बीच में कोई भी हम नंबर ले लें, मान लो 3 और 4 ही ले लें, तो अगर हमारा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो हम उसका आंसर में ये थोड़ी लिखेंगे कि उसका कितना सेंटीमीटर है. अगर वो हमसे पूछेगा तो 3 या 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, नो, हम काउंट करेंगे. अगर हम इसे काउंट करें यहाँ, तो ये 0 और ये हो गया 1. अगर काउंट करने में सिर्फ ये 2 ही हैं, तो वी विल राइट इट 0 एंड वी विल पुट इट 1. तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर. कितने का हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, 1 सेंटीमीटर का. सिमिलरली ये लीफ है. अब ये लीफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये, तो आप इसे लीफ के लिए 0 मानेंगे, और जो एंडिंग पॉइंट है ये, इसे मानेंगे जितना भी आपके नंबर्स आएंगे. देन यू विल टेल दैट इट इज़ ऑफ हाउ मच सेंटीमीटर. ओके, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, जस्ट वेट. सी अगेन, मैं आपको क्या बोल रही हूँ बेटा, इस वाले को तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है. दिस स्केल आई हैव गिवन यू होमवर्क. ओके, लेकिन होमवर्क में करने से पहले व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि जो भी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये 0 है, ठीक है, 0 तो ये होगा, और एंडिंग पॉइंट जो भी आप काउंट करेंगे वो यहाँ पे आएगा, नो प्रॉब्लम. अब जैसे आपका ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग कहाँ से है,
या तो 0 से होती तो ठीक है, हम उतना मान लेते, लेकिन 0 से तो नहीं है, तो हम इस ऑब्जेक्ट का मेज़रमेंट निकालने के लिए इसकी फर्स्ट लाइन को 0 मानेंगे और सेकंड लाइन को क्या मानेंगे 1। ऐसे ही ये वाले ऑब्जेक्ट का मेज़रमेंट निकालने के लिए हम पहले पॉइंट को मानेंगे 0, दूसरे को 1, देन 2, देन 3, देन 4 और फिर जो भी आपका आएगा देन यू विल टेल कि ये लीफ कितने सेंटीमीटर है। ओके, मीन टू से कि आपको ये नहीं समझना है कि अगर ये 0 है, ये मान लीजिए 5 है, ये 7 है और कोई ऑब्जेक्ट 5 और 7 के बीच में बना हुआ है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये 5 या 7 सेंटीमीटर का है। नो, उस ऑब्जेक्ट अगर वो बना 5 से है और एंड 7 में हो रहा है तो आपको 5 के ही वाले लाइन को उसके लिए 0 मान के दोबारा से काउंट करना पड़ेगा। ओके, अब जैसे क्या कह रहा है, द मैच स्टिक इज 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, द डाई इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड। देखो बता दिया ना इसने यहाँ पे, द डाई इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड। अब 1 सेंटीमीटर कैसे आया, क्योंकि डाइस के स्टार्टिंग पॉइंट को हमने 0 माना, या तो वो स्टार्टिंग में होता है, नहीं है तो हम उसे 3 या 4 तो नहीं मान सकते ना। मेज़र करने मेज़र तो हमेशा स्टार्टिंग से होगा, स्केल के बीच में रख के तो कोई चीज़ मेज़र नहीं होगी ना। तो हमने इसे 0 मान लिया और इसके एंडिंग पॉइंट कहाँ पे था, एक ही में आ रहा था, 1 में आ रहा था, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया। द लिजार्ड इज 13 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ हियर other 3 questions are that the leaf is how many centimeter long, the wax color is how many centimeter long, and then another question, now look at the scale that you find in a geometry box, how many centimeter does it have। तो ये 3 questions आपके क्या हैं, होमवर्क हैं। ओके, एंड आई होप दैट आप ये questions करेंगे। सो बेटा, here today we are going to discuss this much only. Now I hope that you will able to solve this. Okay, and no need to worry, solve, and whatever you will get the answer, just write that. In my next video I'll tell you the answers of these questions. Okay, so kindly complete all the work in your notebook whatever I have given you in PDF previously, and today you have to do homework of these 3 questions. Okay, thank you and have a nice day ahead.